ओवरहेड। इससे पिछले वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर पढ़ चुके हैं। अब हम ओवरहेड के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड: aggregate of all expenses relating to indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses is known as overhead. Accordingly, all expenses other than direct material cost, direct wages and direct expenses are referred to as overhead. जितने भी अप्रत्यक्ष मटेरियल, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष खर्चे हैं वे सभी ओवरहेड कहलाते हैं। According to Weldon, overhead may be defined as the cost of indirect material, indirect labor and such other expenses including services as cannot conveniently be charged to a specific unit. Blocker and Weltman define overhead as follows: overhead costs are operating costs of a business enterprises which cannot be traced directly to a particular unit of output. Further, such costs are invisible or unaccountable. Overheads is the aggregate of indirect materials cost, indirect labor cost and indirect expenses which cannot be conveniently identified with and directly allocated to a particular cost center or cost object. क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड: ओवरहेड को हम वर्गीकृत कर सकते हैं किन किन आधार पर? क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग of cost based on the sum featured and objectives of the business organization. The following are the important methods on which the overheads are classified: on the basis of nature, on the basis of function, on the basis of variability, on the basis of normality or on the basis of control. Classification of overhead on the basis of nature, variability, normality. इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। वेरिएबिलिटी के आधार पर फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। स्थायी ऊपरी व्यय, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय और सेमी अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। नॉर्मलिटी के आधार पर नॉर्मल सामान्य और असामान्य ऊपरी व्यय। अब हम इन्हें और भागों में बांट सकते हैं, फंक्शन के आधार पर और कंट्रोल के आधार पर। इसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कंट्रोल के आधार पर कंट्रोलेबल ओवरहेड और अनकंट्रोलेबल ओवरहेड। On the basis of nature, one of the important classification is on the basis of nature or elements based on nature. The aggregate of all indirect material cost, indirect labor cost and indirect other expenses are known as overheads. Accordingly, overheads are grouped into indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses. Indirect material cost: indirect materials do not form part of the finished products. Indirect materials are indirectly or generally used for production which cannot be identified directly. For example, oil, lubricants, cotton, waste, tools for repairs and maintenance etc. are indirect materials. वे खर्चे जो कि प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आते हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग भागों में बांटा नहीं जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता, और वे खर्चे जो कि अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जो जिनको कि जिनका होना भी, अस्तित्व में होना भी ज़रूरी है, अन्यथा काम रुक जाएगा, फ्रिक्वेंटली काम नहीं हो पाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ऑयल, लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट,
Tools for repair and maintenance, etc., are indirect materials. Indirect labor cost. Indirect labor is for work in general. The direct labor can be identified with and charged to the job. Indirect labor cannot be so charged and has therefore to be treated as part of the factory overheads to be included in the cost of production. Examples are salaries and wages of supervisors, storekeepers, maintenance labor, etc. इसी तरह से अप्रत्यक्ष जो लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या अप्रत्यक्ष श्रम जो की लागत जो है, उसमें भी वही शामिल है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से काम को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं, वह इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाता है। उसके कुछ उदाहरण में हम देखें, सुपरवाइज़र की सैलरी, स्टोर कीपर, मेंटेनेंस लेबर्स आदि। यदि ये नहीं होंगे तो कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगा। इनका सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इनका होना आवश्यक है। वह आपके अप्रत्यक्ष खर्चे या ऊपरी व्यय कहलाते हैं। Indirect expenses. Any expenses that are not specifically incurred for or can be readily charged to or identified with a specific job. These are the expenses incurred in general for more than one's cost center. Examples of indirect expenses are rent, insurance, lighting, telephone, stationery expenses, etc. इसी तरह से कुछ अप्रत्यक्ष खर्चे हैं जो कि कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो फैक्ट्री का काम कहीं ना कहीं बाधित होगा और जो कि उसके इनडायरेक्ट रूप से लाभ को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन और ये अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन इनका होना आवश्यक है। जैसे कि कुछ खर्चे हैं, जैसे रेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, लाइटिंग है, टेलीफोन है, स्टेशनरी है, इन सभी की आवश्यकता कहीं ना कहीं होती ही है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, द क्लासिफिकेशन ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शन of the business concern is known as function wise overhead. Here there are 4 important functional overheads such as, अब यहाँ पर 4 प्रकार के फंक्शनल ओवरहेड्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उत्पादित ऊपरी व्यय, विक्रय ऊपरी व्यय, प्रशासनिक ऊपरी व्यय और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण ऊपरी व्यय। प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से होते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड इज ऑल्सो टर्म एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर incurred for work in operation or factory. These costs are normally incurred during the period when the production process is carried on. For example, factory rent, factory light, power, factory employee salary, oil, lubricants of plant and machinery, etc. ये सभी प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन ओवरहेड के उदाहरण हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रशासनिक ऊपरी व्यय। प्रशासनिक ऊपरी व्यय कौन से ऊपरी व्यय हैं? ये जनरल फॉर मैनेजमेंट टू डिस्चार्ज इस फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग। These expenses are not specifically incurred and cannot be identified with the specific job. It is also termed as office cost. For example, अब इनमें कौन कौन से आएंगे? ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आ जाएंगे। ऑफिस रेंट, रेट्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लीगल एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा आर द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
cost. Selling overhead, selling expenses are overheads which are incurred for promoting sales. वे खर्चे जो कि सेल्स को प्रमोट करते हैं, विक्रय को प्रमोट करते हैं, विक्रय में सहायक होते हैं, वे सेलिंग ओवरहेड्स कहलाते हैं. इसमें क्रिएटिंग डिमांड एंड द रिटर्निंग कस्टमर्स. फॉर एग्जांपल सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, रेट्स ऑफ शोरूम, सैंपल्स, कमीशन एक्सेट्रा. एडवर्टाइजमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि विक्रय को बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग प्रदान करते हैं. हम टीवी पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. उन एडवर्टाइजमेंट से ही मैक्सिमम लोगों तक या मैक्सिमम कस्टमर तक उस चीज़ की अप्रोच होती है, वो चीज़ वहाँ तक पहुँच पाती है और उसकी सेल्स बढ़ाने में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं. बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स को प्रमोट करने में इनको लगा दिया जाता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा जिसकी सेल्स वो बढ़ जाती है. तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है सेलिंग ओवरहेड का. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर incurred for distribution of products or output from producers to the ultimate consumers. For example, warehouse staff salaries, expenses of delivery van, storage expenses and packing etc. अब डिस्ट्रीब्यूशंस में जो मददगार होते हैं प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, वे सभी खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे. जो फैक्ट्री से लेकर कस्टमर तक जिन चीज़ों को पहुंचाया जाता है, जो मदद करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाते हैं, जिसमें वेयर हाउस स्टाफ सैलरी, एक्सपेंसेस एंड डिलीवरी वैन, स्टोरेज एक्सपेंसेस एंड पैकिंग एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी के आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं. On the one of the important classifications is on the basis of variability. According to this, the expenses can be grouped into fixed overhead, variable overhead and semi variable overhead. Fixed overhead वे overhead हैं जो कि पूरी तरह से फिक्स होते हैं. Fixed cost or overhead incurred remain constant, i.e. this cost is not related to production or sales increased or decreased. This cost is also called as period cost. For example, rent and rates of buildings, depreciation of plant, salaries of supervisor etc. वे खर्चे जो कि स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कहलाते हैं. जैसे कि फैक्ट्री का अगर कोई रेंट है, बिल्डिंग की अगर कोई रेंट है, तो वह कितने भी स्तर के प्रोडक्शन के लिए सिमिलर रहती है. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट में कितना भी प्रोडक्शन किया जाए, कितना भी काम किया जाए, उसका डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, चाहे 10 यूनिट्स का किया जाए, 1000 का किया जाए. सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र, सैलरी जो सुपरवाइज़र है उसको भी सैलरी देनी ही होती है, वह भी फिक्स होती है. वेरिएबल ओवरहेड. वेरिएबल ओवरहेड में बी डिफाइंड एज दे टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल अमाउंट विथ changes in the volume of output or volume of sales. Accordingly, the change is in direct proportion to output. Indirect materials, indirect labor, repair and maintenance, power, fuel, lubricants etc. are examples of variable overhead cost. वे खर्चे जो कि परिवर्तनशील होते हैं वो वेरिएबल ओवरहेड कहलाते हैं, जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ते हैं और प्रोडक्शन के साथ साथ घटते हैं. वो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स इनकी घटना बढ़ना होता है, वो आपका वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है. इसमें आपके आ जाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, रिपेयर मेंटेनेंस, पावर, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट. Semi variable overheads. Semi variable overheads are incurred with a change in the volume of output or turnover. They neither remain fixed nor do they tend to vary directly with the output. These costs remain fixed up to certain volume of output, but they will vary at other part of activities. Semi variable overheads are mixed costs.
partly fixed and partly variable. For example, power, repairs and maintenance, depreciation of plant and machinery, telephone, etc. ये वह खर्चे हैं जो इनका कुछ हिस्सा स्थिर होता है और कुछ हिस्सा परिवर्तनशील होता है, जो कि एक सीमा तक स्थिर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट की यूनिट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही इन खर्चों में भी परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अर्ध परिवर्तनशील लागत कहलाती हैं, जिसमें कुछ हिस्सा स्थिर होगा और कुछ हिस्सा इसका परिवर्तनशील होता है। On the basis of normality, overheads are classified into normal overheads and abnormal overheads on the basis of normality features. According to this, normal overheads are incurred in achieving the target output or fixed plan. On the other hand, abnormal overheads costs are not expected to be incurred at a given level of output. In the conditions in which the level of output is normally produced, for example, abnormal idle time, abnormal wastage, etc., such expenses are transferred to profit and loss account. And control के आधार पर it is one important classification of overhead. On the basis of control, based on control, it is grouped into controllable overhead and uncontrollable overhead. Controllable overhead, which can be controlled by the action of a specified authority, executive for idle time, wastage can be controlled. Uncontrollable overheads cannot be controlled by the action of the executive heading of the responsibility center. For example, rent rates of building cannot be controlled. ऐसे खर्चे जो कि सामान्य हैं और कुछ खर्चे जिनको कि कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे खर्चे जो कि कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं, वह भी आपके ओवरहेड्स के अंदर आएंगे। अब हम आगे देखते हैं